जी 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 So जी we will before तो we जब भी हो, जरूरी नहीं है हाँ जी अभी हाँ जी हो, हाँ ड्यूरिंग जी सब उसमें एक बार आप ये समझा दीजिएगा। जी जी sure Poonam ji we'll take this. I think we can take this topic in one of our discussions. Yes. For sure. I think it's a good topic. I just wanted to bring it to your notice. जरूरी Sure. नहीं है अभी ही हो, Sure. I'm taking a note of it right now. क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी ने एक शो में किसी ने बोला था, मैंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया, मैंने उसका पाणी ग्रहण किया। हमने कहा, और पाणी ग्रहण करके तुमने क्या किया उस बेटी के साथ? क्योंकि Right. हमारे हिसाब से तो पाणी ग्रहण तो सिर्फ पति करता है। Right. I've heard about that. You've heard that, right? You know what yeah. I'm talking about. A lot of people have tried to use that to हाँ, आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहा है। Yeah. और हमें समझ में नहीं आ रही है, हम उनसे यही बोलते हैं, अगर दान नहीं करोगे तो क्या करोगे? अपने लिए रखोगे? Right. Okay. So I think we're getting to a quorum. I'll get this started. So welcome everybody to our weekly Vedic study circle. Today we'll be starting a series with Raju ji. This will be the first Saturday of every month. That will be our intention to go through one by one, go through the meanings of all the mantra in our Dainik Yajna. Right. So a lot of us understand it. I mean, but I think a lot of us also don't understand. And we are doing Yajid in the Arya Samaj or other places. We know it by heart, some of us, but I don't think everybody understands meaning of all the mantra. We'll continue this series all along and try to connect why is a mantra in a particular location, in a particular position, and what it means. So I think Raju ji has kindly agreed to continue on with this series and go in depth on this. The other great thing about this series is with Raju ji is that we will, every time we do this, we will have a child volunteer listening in to these to the meanings, and they will take it from here. They'll be taking notes and asking questions, and they'll be taking it from here to their VSS school program and sharing their thoughts, what they heard, sharing their thoughts with other kids, and sharing their interpretation of what they heard. So that's a great initiative to get the kids acquainted with the Dainik Yajna and other topics as well. So I would just keep request that we will let the format go the way it is. So we will give Raju ji time to 50 minutes, I would say, and then we'll, in the end, as you always do, we'll give 5 to 10 minutes for questions, and I'll hope, Prerna, that we'll have a lot of questions from you. So I also want to introduce Prerna to Geeta. Prerna can come over on video. If not, that's fine as well. Geeta, can she come over the video? That's okay. So Prerna Gupta, who is one of our youth leaders within the Arya Samaj VSS youth group, she has volunteered to be the first person to attend this and spearhead this series, and she'll be sharing it with her peers in VSS. So thanks, Prerna, for doing that. Really appreciate, and I hope others can take advantage of this as well through you. So Rajuji, with that, I think we'll give it over to you, and then you can introduce the topic as you feel appropriate. धन्यवाद. Let's start with गायत्री मंत्र. सभी से प्रार्थना है, श्रद्धा से, प्रेम से हम सब मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे. लेकिन उससे पहले लेट मी नो माय वॉइस इज क्लियर. अभी जी? Yes. ठीक. लेट्स स्टार्ट विद गायत्री मंत्र. ओम भूरभुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.
योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोताये सहनां ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, वैदिक स्टडी सर्कल के समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, श्री अभिषेक सहगल जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके बीच कुछ कहने का अवसर फिर मिल रहा है। और जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया, we are going to start a series of one mantra in which we will try to discuss the meaning and mystery of Veda mantras which we sing or pronounce in our दैनिक यज्ञ। उन मंत्रों का थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विचार आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो विषय रहेगा, जिस पर हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जैसा होगा लेटर ऑन, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 3-4 शब्दों को समझने की कोशिश करें। लास्ट टाइम व्हेन आई मेट, I try to explain the meaning of Stuti, Prarathana, Upasana. But just to remember, some listeners are joining us, new listeners are joining us. So I would like to revise it in a sentence, in a one sentence. Stuti means to chant the glory of Almighty. When we chant, when we call Him, when we recite Him with full devotion, with full surrender, that is called स्तुति। ईश्वर के गुणों को गाना स्तुति कहलाता है। प्रेम से, श्रद्धा से भक्त जब ईश्वर के गुणों को गाता है, मन वचन कर्म से ईश्वर के गुणों को ध्याता है और संकल्प करता है कि ईश्वर के गुणों को वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, सत्य बोलेगा, तो इसको हम स्तुति कहते हैं। द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, Maharshi Dayanand Saraswati Maharaj says, what is the fruit of stuti? Some people ask, why should we do his stuti? Why should we chant his glory? What is the fruit? What is the result? महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज बतलाने की कोशिश करते हैं कि स्तुति का फल यह होता है कि we get his blessings. We become able to get his blessings. And his blessings are divine, protective, and infinitive. The one who wants to get his blessings should chant him, should recite him, must chant his glory. महर्षि दयानंद कहते हैं कि उस परमेश्वर का गुणानुवाद करने से, उसका चिंतन करने से परिणाम यह होता है कि ईश्वर के गुण तो आते ही आते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है, उसकी कृपा भी जीव पे बरसती है। वैसे तो सब जीवों पर, सब पर, मनुष्य पर उस ईश्वर की कृपा बरस रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ईश्वर की स्तुति करते जाते हैं, वैसे वैसे वी कम टू नो दैट ही इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मर्सी, ही इज मर्सीफुल। वैसे वैसे हम इस बात को जानते जाते हैं कि वह दया का अद्भुत सागर है, अल्टीमेट सोर्स है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति सबको करनी चाहिए। Then the second thing comes, that is prarthana. Prarthana means seek his help after doing your
100% हार्डशिप। ऋषिदान सरस्वती महाराज लिखते हैं पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करना। पूर्ण पुरुषार्थ से मतलब walk till you are too tired to walk, then knock his door for his divine help। जितना आपसे बन सकता है करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद क्या करें, उसके द्वार को खटखटाने की कोशिश करें। और क्या करना, ओ गॉड, आई हैव डन व्हाट आई कुड डू, नाउ इट्स अप टू यू to fulfill my desires, to listen my prayer। And Ved says, Sa u Shravata Agnim Ide, oh man, you call him, you pray him, he will listen your prayer। He is not dumb and deaf, he will answer, he will listen, and he will answer your prayer by fulfilling your desires, your ambitions। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद। और तीसरी बात ऋषिदान लिखते हैं उपासना। उपासना का अर्थ क्या होता है? उपासना का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ बैठना, टू सिट नियर गॉड, टू सिट इन हिज डिवाइन लैप। एज वेद सेज, यस्य छाया अमृतम, इट मीन्स हिज शेल्टर इज नेक्टार। वी गेट इमॉर्टैलिटी व्हेन वी सिट इन हिज डिवाइन लैप। तीसरी चीज है ईश्वर का संग करना, उपासना। और उपासना का फल क्या होता है? ऋषिवर दयानंद सरस्वती once again says, man gets immortality और इमेंसिपेशन और मोक्ष को प्राप्त करता है बाय उपासना। और ये जो 8 मंत्र हैं जिन पर हम थोड़ा सा चिंतन और विचार आज से शुरू करने जा रहे हैं, इसका जो टाइटल ऋषिदान सरस्वती महाराज ने लिखा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र, these 5 words are very precious। 5 words are very, very precious, important, significant, and they have deepest meaning. Though I have tried to explain their meanings, but they have deepest. Another word is Ishwar। Ishwar means the ultimate source of prosperity। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से ही ईश्वर शब्द बनता है। इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? सारा का सारा ऐश्वर्य जिसका है, जिसकी सारी की सारी प्रॉस्पेरिटी है, द अल्टीमेट सोर्स एंड गिवर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कॉल्ड ईश्वर, इज नोन एज ईश्वर। दिस प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ डजंट बिलोंग टू मी, इट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी। When I start thinking like that, that it means I'm making complete surrender to Almighty. And when I and we make complete surrender to Almighty, then He gives us the sweetest fruit of immortality। ईश्वर का अर्थ ही है ऐश्वर्य का स्वामी, और वो अपना ऐश्वर्य उनको प्रदान करता है जो उसके पथ पर चलते हैं। और 5वां शब्द है मंत्र। What does it mean? Mantra means a sublime thought। मंत्र का अर्थ ही होता है एक ऐसा विचार जो हमारे को सुख देता है, जो हमारे को शांति देता है, जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर देता है। That is called mantra, which enlightens ourselves। जो हमारे को आत्मिक जागरणों से उद्बुद्ध कर देता है, प्रकाशित कर देता है, उसे हम मंत्र के नाम से पुकारते हैं। वेद के भीतर मंत्र पाए जाते हैं। And one thing I would like to clear, Vedas are the revealed knowledge of universe। Only Vedas are the revealed knowledge। No other scripture can take the place of Vedas। Vedas are the ultimate। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज में हैं और हमारे को वेद पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि वेद ईश्वर की दिव्यतम वाणी है, श्रेष्ठतम वाणी। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये जो टाइटल महर्षिदान सरस्वती महाराज ने दिया है, और उसके भीतर क्या किया ऋषिदान ने? 8 मंत्रों को रखा है। 8 मंत्रास आर रिलेटेड विथ स्तुति प्रार्थना उपासना।
और उसमें से हम कुछ शब्दों पर विचार करने की कोशिश करेंगे इन वेरी सिंपल वे, नॉट इन डीपेस्ट वे, इन वेरी सिंपल वे। आई ट्राई टू explain it, or I'll try to open the mystery which is still hidden. और उसमें सबसे पहला मंत्र है आज हम लेते हैं, और इस मंत्र की एक बहुत बड़ी खासियत, और खासियत क्या है? यह मंत्र ऋषिवर दयानंद सरस्वती महाराज का सबसे प्रिय मंत्र है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज was fond of this mantra. He loves this mantra. और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने यजुर्वेद का भाष्य किया है। भाष्य मीन्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेद मंत्रास, एंड ही हैज डन all the meanings of Yajurved and some mantras of Rigved, but he couldn't do the bhashya or meaning of 4 Vedas because he was given poison at the age of just 59. If he would have got the age of near about 100, then he would have completed the work. But unfortunately, he couldn't get the age, couldn't get more than 59 years. महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने संकल्प लिया था कि मैं चारों वेदों का भाष्य करूंगा, अर्थ करूंगा, लेकिन वह केवल यजुर्वेद के पूरे 40 अध्यायों का अर्थ कर पाए और थोड़ा ऋग्वेद का अर्थ कर पाए। जहर दे दिया गया, जीवन लीला समाप्त हो गई थी, और दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो 59 साल की उम्र में संसार से चले गए। अगर वो 100 साल तक रहते तो चारों वेदों का भाष्य हमारे को मिल जाता। भाष्य, the meaning of Veda mantras. And when we perform daily yaj, dainik havan, after doing achman, some do achman after Ishwar, Stuti, Prarathana, Upasana mantra, and some do it before achman. After doing or before doing achman, we chant 8 mantras. We recite 8 mantras. And these 8 mantras are related with the meaning of Stuti, Prarathana, Upasana. पहला मंत्र ऋषिवर का प्रिय मंत्र है। ऋषि को सबसे ज्यादा प्रिय मंत्र यही था। कैसे पता? हाउ डू वी नो इट? वो जब जब वेद मंत्रों का भाष्य करते हैं, अथवा जब जब महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज को कहीं प्रवचन करने का अवसर मिलता था, then he used to start his pravachan with this very famous mantra. As I started my pravachan with Gayatri mantra, similarly Maharishi Dayananda Saraswati Maharaj used to start his pravachan with Vishwani devas savitah duritani parasova yat bhadram tanna aso. Those who are listening me, I request them to chant this mantra with me once again. Slowly, slowly we will sing, we will chant it, and then we will try to know the meaning. Om Vishwani Deva Savitah Duritani Para Sova Yat Bhadram Tat Naha A Sova. Thanks for chanting. Thanks for singing. इस मंत्र के भीतर what a devotee saying, ईश्वर की स्तुति है। जैसे मैंने पहले बताया, 8 के 8 मंत्रों के भीतर what will you find, what will you get, what will you see? स्तुति, प्रार्थना and upasana. These 3 kinds of emotions
you will find in these 8 mantras. That is why these mantras are called of Stuti, Prarathana and Upasana mantras. So in this very first mantra, a devotee is singing his glory by Deva Savita. First, try to understand these 2 words. These are very important. This is called Stuti. As I have told you, Stuti means to chant his glory. उस परमेश्वर के गुणों को गाना, उस परमेश्वर के गुणों का चिंतन करना. और ये बात बिल्कुल ठीक है. When you seek somebody help, first you will have to make him please. किसी की भी सहायता चाहिए तो उसको प्रसन्न कीजिए. अब भगवान की सहायता हमारे को चाहिए, क्योंकि उसकी सहायता के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता. तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं. We say thank Almighty. और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, God is formless. He doesn't have any body. Though I have got body, you have got body, but he doesn't have any body. Reason? He doesn't get birth. Why he's bodiless? Why he's shapeless? Why he doesn't come in the bondage of birth and death? Because he doesn't get birth. The one who gets birth has body, shape, and comes in the bondage of birth and death. God is bodiless. He doesn't have any physical or any subtle body. भगवान का कोई शरीर नहीं. शरीर मुझ और आप जैसे प्राणियों का होता है. मैं भी भगवान के गुणों को गा रहा हूं, आप भी भगवान के गुणों को गा रहे हैं. और वेद मंत्र के भीतर भगवान के गुणों को गाया गया. कैसे? सबसे पहली बात क्या कही गई? ओ लॉर्ड, यू आर देव. एंड देव हैज सो मेनी मीनिंग्स. So many meanings. One should remember, this is the secret of Vedas, that a word has so many meanings. That's why it is said in Sanskrit Sahitya, Sanskrit literature, Shabdah Anekartha. It means a word has so many meanings, so many beautiful meanings. But now, I cannot explain all the meanings of Deva, but I'll try to explain just a meaning of Dev. देव कहते किसे, और देव बनने का रास्ता क्या है? वेद मंत्रों को सुनने का लाभ यह है कि जब वेद मंत्रों के अंदर जो बातें कही गई हैं उनको मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूं. These are the 4 steps of listening Veda mantras. First listen, then think, then decide, and fourth adopt. Let me repeat it again. First listen Veda mantras. Every day listen his glory. Listen Veda mantras in which his glory has been explained by Almighty, by rishis, by saints, by sages. And then think, what have you heard? Think what you heard. Go in a lonely place, concentrate, and try to think, what have you heard? Is it logical or illogical? Is it appealing or not appealing? Is it can change your life or not? Go and think. Third, decide. What should you decide? Whatever I have heard, I'll try to adopt in my daily routine or life. And fourth, adopt, implement. And the 4 steps is to implement the truth of Veda mantras in your daily life. So देव कहते किसे हैं? हमें देव बनना है, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिए.
देव का एक अर्थ आपके सामने कह देता हूं, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और भी अर्थ आएंगे, और भी बार देव शब्द का प्रयोग होगा, तब मैं आपके सामने और शब्दों को भी, अर्थों को भी कहने की कोशिश करूंगा। देव मीन्स द गिवर। देव का अर्थ है जो देना जानते हैं, देना ही चाहिए। जो देता है वो देव बन जाता है, जो देता है वो ऊंचा उठ जाता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, दान की बात कह रहे थे, देने की बात कह रहे थे। हमारे यहां पे बतलाया गया है, वेद शास्त्रों के भीतर बतलाया गया है कि जो महान पुरुष होते हैं वही देव होते हैं, या यूं कहें जो देव होते हैं वो महापुरुष होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनमें देने का भाव होता है। दे बिलीव इन डिस्ट्रीब्यूशन, दे बिलीव इन गिविंग, एंड दे बिकम ग्रेट बाय गिविंग। उनको देना अच्छा लगता है। दे गेट सेटिस्फैक्शन व्हेन दे गिव। उनको बड़ी संतुष्टि होती है जब वो देते हैं। ए टेल कम्स इन उपनिषद। उपनिषद के भीतर एक कथा आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस उपनिषद कथा। A story. Once Asur went to Prajapati. Asur means the one who believes in hoarding. Asur, the one who is cruel. Asur, the one who cannot make others happy. And the president of Asur, Virochan. Upanishad says his name is Virochan. Virochan went to Prajapati with some complaints. और जाकर उसने प्रजापति मीन्स द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, द क्रिएटर ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, द प्रोटेक्टर ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, द वन हु प्रोटेक्ट्स, द वन हु गाइड्स अस इज नोन एज प्रजापति, आवर स्वामी, हमारे स्वामी, जो हमारा स्वामी है, हमारा जो ऑनर है, जो हमारे को रास्ता दिखाता है, जो हमारी रक्षा करता है, इससे ईश्वर को हम प्रजापति के नाम से पुकारते हैं। एंड गॉड हैज इनफिनिटिव नेम्स बट ही इज वन। देव भी उसका नाम है, प्रजापति भी उसका नाम है, विष्णु भी उसी का नाम है। ही हैज इनफिनिटिव पावर्स, प्रॉपर्टीज, that's why his names are infinitive, but he is only one. He is one, he was one, and he will remain one. तो प्रजापति के पास असुर गए और जाके कंप्लेंट की, और असुरों ने जाके कंप्लेंट किया क्या कि प्रजापति, देवताओं की सभी जगह पूजा होती है, दे आर वर्शिप्ड एंड वी आर किक्ड ऑफ, दे आर लाइक्ड and we are disliked, they are invited and we are uninvited. उनको लोग बुलाते हैं और हमारे को बुलाते भी नहीं है, उनकी पूजा होती है और हमारी पूजा भी नहीं होती। Why this is so? Where the difference lies? Why they are worshipped and we are kicked off? Why we are not like? जब उन्होंने प्रजापति से ऐसी शिकायत की, प्रजापति ने कहा ठीक है, I'll give you the answer of your question, but after some days. But before getting the answer, you will have to have a lunch with me. असुर बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे सवाल का जवाब भी मिलेगा और हमारे को खाने को भी मिलेगा। Asur means the one who believes in only fulfillment of his stomach. Bread and butter, whose ultimate goal is bread and butter, is called Asur. The one who doesn't think of realization.
The one who doesn't think of illumination is called asur. So many meanings of asur are found in our Vedic literature. The one who doesn't believe in giving is called asur. बड़े खुश हुए और अगले दिन प्रजापति ने उनको इनवाइट किया, you come and have lunch with us, with me. और जब वो वहां पे आए तो they were surprised to see devatas over there. देवता भी वहां पे आए हुए थे और वो बड़े सरप्राइज थे। असुरों ने कहा, प्रजापति आपने हमारे को बुलाया, देवता भी यहाँ पे हैं। प्रजापति ने कहा, आई डू नॉट नो एनी डिस्क्रिमिनेशन और आई डू नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन. यू आर माई चाइल्ड एंड देवतास, एंजल्स आर आल्सो माई चाइल्ड. I have arranged lunch for both. जैसे असुरों ने सुना कि प्रजापति ने कहा कि हम दोनों के लिए खाना है, लंच है, असुरों ने कहा नहीं, पहले हम खाएंगे, देवताओं को बाद में देंगे. प्रजापति ने कहा बिल्कुल ठीक है, पहले तुम ही खाओ, लेकिन खाने की एक शर्त है, जस्ट लिसन वन कंडीशन. असुरों ने कहा अब कौन सी शर्त है प्रजापति? कि शर्त यह तुम भी खाओगे, देवता भी खाएंगे. और दोनों के हाथ में आगे बड़े बड़े लकड़ी के चम्मच बांध दिए जाएंगे और उन्हीं से तुम्हारे को उठाना है और उन्हीं से तुम्हारे को खाना है. देवता भी ऐसे खाएंगे, तुम भी ऐसे खाओगे. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. असुर बड़े हैरान हुए, ये क्या मतलब है? लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, वी एक्सेप्ट योर कंडीशन, वी आर रेडी टू ईट, वी आर रेडी टू एंजॉय आवर लंच. बैठ गए. दे सैट इन ए क्यू. एक लाइन के भीतर सारे के सारे असुर बैठ गए. एंड वेरी डिलीशियस लंच वाज गिवन टू देम. बहुत कुछ उसके भीतर था, लेकिन वो नीचे बैठे हुए थे. इन अर्लियर एंशिएंट इंडिया वी यूज्ड टू सिट, वी यूज्ड टू ईट sitting on earth. There wasn't no concept of dining table in ancient India. We used to sit on the lap of motherland, Matribhumi, Dharti, and enjoy the food. देवता भी देख रहे हैं, असुर नीचे बैठ गए और सारे के सारे एक लाइन में बैठ गए. But it was very difficult to pick the food and to put in your mouth when your hands are straight, cannot go. असुर जो भी उठाते, चम्मच आगे था, लकड़ी बंधी हुई थी, जो भी उठाते, goes back. Whatever they pick, go back. Whatever they pick, go back. They couldn't eat even a grass of a roti. They couldn't enjoy their food. And after 1 hour, Prajapati said, your time is over. Now it's Devta's turn. असुरों ने कहा, महाराज एक बात सुनो प्रजापति, हमारे हाथों के भीतर जैसे लकड़ी बांध दी गई और हमारे हाथों के भीतर लंबे लंबे चम्मच स्पून्स बांध दिए गए, देवताओं के हाथ में भी बांधना, हम तो कुछ खा ना सके, पानी तक ना पी सके. प्रजापति ने कहा बिल्कुल ठीक, इनके हाथ के भीतर भी यही बांध दिया जाए. देवता बैठ गए. देवताओं के हाथ के भीतर भी बड़ी बड़ी फटियां बांध दी गई, चम्मच उसके आगे लगा दिए गए और प्रजापति ने कहा, नाउ योर टाइम इज स्टार्टेड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एंजॉय मील, एंजॉय फूड. तो सबसे पहले देवताओं ने क्या किया? बिफोर एंजॉइंग द फूड दे थैंक द ऑलमाइटी. It is said, or it is taught in our gurukuls, that before eating meal, we should say thank to Almighty.
A mantra comes in Vedas. Annapate annasya no dehi anamivasya shushmina prapradataram tarish urjanno dehit vipade chatushpade. O Lord, give us food which should give us energy, health. Just give us food, and for this healthy, delicious food, we thank you, we thank you, we thank you. We must thank you. तो देवताओं ने सबसे पहला काम क्या किया? बैठे और वो एक दूसरे के सामने बैठ गए. They sat in front of each other with a distance of 2 feet. After saying thanks to Almighty, they started enjoying their meal. और उन्होंने क्या किया? एक देवता ने उठाया, दूसरे देवता के मुंह में दिया, दूसरे देवता ने उठाया, अपने सामने वाले देवता के मुंह में दिया, और after enjoying their meal, they thank Prajapati, they thank Almighty and went away. अब तो असुर बहुत हैरान है, गुस्सा भी उनको बहुत आया, और उन्होंने प्रजापति से कहा, हम तो अन्न का एक दाना भी ना खा सके. और देवताओं ने खाया भी और पूरा का पूरा खा लिया. प्रजापति ने कहा, देखो, तुमने मुझसे सवाल किया था. It was your question. What is the difference between us and devatas? I have given the answer to your question. Can you see the difference? Could you see the difference? असुरों ने कहा, महाराज, हमारे को तो कोई अंतर दिखा नहीं. प्रजापति ने कहा, now I tell you the difference between you and devatas. अंतर क्या है? अंतर यह है कि तुम अकेले खाना जानते हो, और देवता इसीलिए रिस्पेक्टेड हैं because they believe in distribution. They do not eat alone. It is said in Ved that one who eats alone eats food of sin. He makes his food sinful when he eats alone. One should not eat alone. One should distribute, one should thank Almighty and then enjoy the meal. कि तुम्हारे और असुरों के भीतर ये अंतर है, असुर बांटना जानते हैं और तुम बांटना नहीं जानते. असुरों को भी वही दिया गया जो तुम्हारे को दिया गया, देवताओं को भी वही दिया गया जो तुम्हारे को दिया गया. और तुमने देखा देवताओं ने क्या किया? फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट, वन गिव टू अनदर, अनदर गिव टू अनदर, but you didn't give it to anybody, and that is the main difference. देवता को देवता ही इसलिए कहते हैं जो देना जानते हैं. हम परमेश्वर को भी देवता कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को इतना दिया, we cannot count. He has given us infinite, numberless, countless. And remember one thing, he gave us, he is giving, and he will continue giving us in the last breath of our life. Not in this birth, even in next birth, even in last birth he gave us, in this birth he is giving, and in next birth he will continue giving us. That is why he is called Deva. देव का अर्थ ही इतना है जो देना जानता है. और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, the second feature of Dev is he doesn't accept anything from others. He doesn't accept. भगवान देते हैं लेकिन उनके भीतर लेने की कोई भी इच्छा नहीं होती. What we can offer to him? Only one thing, our heart, our pure mind, we can offer to him. We can give him, we can surrender him. भगवान को हमारे से और कुछ नहीं चाहिए. सबका सब वो दे रहे हैं, सदा से दे रहे हैं. पिछले जन्म के भीतर भी उसने दिया था, इस जन्म के भीतर भी वही दे रहा है, और आगे जन्मों के भीतर भी वही देगा. देने का काम उसका है. He is the absolute giver. That's why he is known as Deva. And he gives with no expectations by taking it back.
देते हैं तो देने के पीछे कोई आकांक्षा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई दे. A mother gives to his child, but with his expectation. She expects a lot from her child. A father expects a lot from her child. A brother expects a lot from his brother. But God doesn't accept anything. He just believes in giving. हमें भी देव बनना है. We should try to be like him. Though we cannot like him, we cannot be God, but we should try to adopt his divine properties in our day-to-day life. देव ईश्वर देव है. ईश्वर के भक्तों के भीतर भी ये देवत्व का गुण होना चाहिए, तभी वो ईश्वर के सच्चे भक्त हो सकते. हम भी कुछ देना सीखें. I heard a bhajan. 2 lines I'm remembering now. ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, अर्पण उसका करना सीखें, वितरण उसका करना सीखें. Whatever we have God from Almighty, we should try to distribute in all, among all, without any discrimination. और जब हम देना सीख जाएंगे, whatever I have, it doesn't mean only wealth. Daan doesn't mean donation. Charity doesn't mean the donation of wealth. Whatever you have, you can distribute. If you have knowledge, you can distribute. And by distributing knowledge, you can become Dev. If you have physical labor, if you can do physical labor, if you can serve anybody, if you can serve humanity, then try to serve humanity. And by serving humanity, you can follow the path of Devatva. You can adopt his divine quality. So first, in this Veda mantra, a devotee is calling Almighty, you are Dev, you believe in giving. You give us from infinitive time, and you will continue giving us till the infinitive time. Timelessly you give us. Thanks for giving. अब दूसरा शब्द है, देव के बाद दूसरा शब्द आता है, और वह दूसरा शब्द है सविता. And Savita has a lot of good meanings, beautiful, significant meanings. One of them is the creator and the producer of this beautiful universe. सविता का एक अर्थ है, वैसे तो बड़े सारे अर्थ हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, Vedas are infinitive in terms of knowledge. Though they are 4 in numbers, but in terms of knowledge, they are infinitive. Their knowledge is infinitive. Their knowledge is boundaryless. ऐसे ही सविता के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ है जो इस जगत को बनाता है, जो इस जगत को उत्पन्न करता है. The creator or the producer of this beautiful world. अब भक्त यहाँ पे भगवान की स्तुति करता है, इन 2 शब्दों के द्वारा स्तुति करता है. पहले कहता है, हे ईश्वर, आप देने वाले हो, सदा से आप देते हो, सदा आप देते रहोगे. और दूसरी बात कह रहा है, इस जगत को आपने बनाया, आपने इसको उत्पन्न किया. और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, for whom God this created beautiful world. This is a question. He didn't create this beautiful world for himself. He didn't create this beautiful world for nature. So who is left now? Me, you, that's all. Try to understand. He created this beautiful world by his immense power only for me and for you. He doesn't want anything. He doesn't accept anything, physically anything. सारे के सारे सुंदर जहां को परमेश्वर ने बनाया, अपने लिए नहीं बनाया.
As a painter makes painting for others, as a sweet maker make sweet for others, similarly, God makes this beautiful world for others. And who are others? The nature and me, both are left, and nature cannot enjoy anything because he is senseless. He doesn't have any knowledge. He doesn't have any desire. Nature doesn't have any desire. Nature doesn't have any knowledge. Desire and knowledge are found in me and you. So this beautiful word is not for Ishwar. This beautiful word is created by Ishwar for me to enjoy and to get emancipation. Maharshi Patanjali, a renowned scholar, says in Yoga Darshan is a very famous book written by Maharshi Patanjali, that God made this beautiful word for two motives. He has two motives or aim in his mind when he created this beautiful word. First, I'm making it for the enjoyment of my child. We are his child. As you say, Tvameva mata cha pita tvameva, tvameva bandhu cha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. You are my father, mother, sister, brother, wealth. Oh God, you are everything for me. God is everything for a devotee. Or God should be everything. God must be everything for a devotee. God created this beautiful world for his child, for me, for you. First, he created this beautiful world for our enjoyment. We are here to enjoy this beautiful world. And second, he created this beautiful world for the emancipation of his child, for us. We are here to enjoy, and after getting enjoyment, we will go on the path, or we must go on the path of emancipation. Emancipation from the cycle of birth and death is the ultimate goal of our life, or must be the ultimate goal of our life. इसलिए हम परमेश्वर को सविता के नाम से पुकारते हैं कि उसने इतने सुंदर जगत को बना दिया। और आप देखिए, इतना सुंदर जगत है, इतना ब्यूटीफुल ये है। The beauty of this beautiful universe cannot be explained in words. Words are failed to express the beauty of this beautiful world. और एक ने तो यहां तक कहा कि जब ये संसार इतना सुंदर है तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भाई ईश्वर अपने आप में सत्यम शिवम सुंदरम। Oh God, you are the source of truth. Shivam, you do our welfare. You always do action for our welfare. Sundaram, you are the source of beauty, or you are the ultimate beauty. आप ही सर्वस्व हो, आप ही सुंदरता का आधार हो। तो ऐसा जो भगवान है, जो देव है, जो सविता है, after chanting or after bowing before him, now a devotee is praying. For what he is praying? Or what is the true prayer? एक सच्ची प्रार्थना क्या है? एक सच्ची प्रार्थना का अर्थ ये नहीं होता कि हम केवल और केवल ईश्वर से धन वैभव मांगते रहे। वो तो वैसे भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे मिल जाएगा, थोड़ा सा श्रम करेंगे मिल जाएगा। लेकिन सच्ची प्रार्थना के भीतर what we want only the lap of Almighty, the divine lap of Almighty, because his shelter is nectar. प्रार्थना, जैसे मैंने आपसे पहले बतलाया, क्या है? प्रार्थना का मतलब है हम पहले प्रयत्न करें, यत्न करें, उसके बाद भगवान के द्वार को खटखटाएं। First do labor, first give more than 100%, and then knock his door for his divine help.
उसको हम प्रार्थना के नाम से पुकारते हैं। ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। कैसी? कि हम कुछ करें ही ना और भगवान से कहें यू फुलफिल आवर ऑल डिजायर्स। I'm praying for wealth, give us wealth. I'm praying for brain, I'm praying for wisdom, I'm praying for age, I'm praying for a calm and balanced life. Give us and give us. No, it is not prayer. It is not the true form of prayer. The right prayer comes after hardship. God says first you do hardship and then knock my door. And I'll listen your prayer after your hardship. It is my condition. God says it's my condition. If you do your hard work, you give more than 100%, then I will listen your prayer. Otherwise, I'm not going to listen your prayers. Your prayers will be fruitless. You will not get the result of your prayers. You will not find your prayers are fulfilled in the absence of hardship. तो करना क्या है? पूरा का पूरा पुरुषार्थ करना है। हमारे ऋषियों ने बताया पूरा का पूरा पुरुषार्थ करें और उस पुरुषार्थ के बाद क्या करें? भगवान के द्वार को खटखटाएं। समझें कैसे? अब इस मंत्र के भीतर हमने क्या कहा? दुरितानि परासुभ, remove all the bad habits. Durit has so many meanings. Durit means mishappenings, misfortunes, sufferings. All suffering means durit. Pain means durit. Unfortunateness means durit. Bad luck means durit. In Vedas, bad luck is called as durit. Mishappening is called as durit. Any trouble, any obstacles is known as durit. And we are praying for the eradication or for the removal of this durit. तो सबसे पहले भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करता है? भगवान ये जितने दुरित हैं मेरे जीवन से चले जाए। मेरा जीवन कैसा हो? Full of pleasure, full of satisfaction, full of balance. जीवन कैसा होना चाहिए? पूरी तरह संतुलित होना चाहिए, प्रसन्नता से होना चाहिए। हम संसार में प्रसन्न रहने के लिए आए। और कैसे वो प्रसन्नता मिल सकती है? अब यहाँ पे दूसरी प्रार्थना इस मंत्र में की गई है, द सेकंड प्रेयर इन दिस मंत्र। यत भद्रम तन्न आशुभ। आशुभ मीन्स वी शुड गेट इट with our hard work and with your grace. What we are praying to get in our life. Bhadra. Bhadra means good fortune. Bhadra means good luck. Bhadra means trouble-free life. Bhadra means life full of wealth, wisdom, peace and prosperity. तो भगवान से इस मंत्र के भीतर प्रार्थना की गई, जितने दुर्गुण हैं, जितने दुरित हैं, जिनसे हम दुखी होते हैं, which make our life painful or which gives us pain, oh God, just remove these kinds of activities or karma from our lives. And instead of durit, just give us bhadra. We need bhadra. We do not want any pain. We want pleasure. We do not want troubleful life. We need troubleless life. We do not want restless life. We want life with full rest. इस मंत्र के भीतर भगवान से ऐसी प्रार्थना की गई है, लेकिन इस मंत्र के भीतर जो प्रार्थना की गई है वो प्रार्थना कब पूर्ण होने वाली है, कब पूरी होने वाली है? जब हम अपना 100% देंगे। अगर हम अपना 100% नहीं देंगे तो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, he is not going to listen our prayer of removing evils or misfortune from our life. No, he's not going to listen. वो सुनने नहीं जा रहा, वो हमारी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने प्रार्थना के भीतर कह दिया फर्स्ट डू एंड देन डिजर्व।
फर्स्ट डू एंड देन डिजर्व, पहले कर और उसके बाद किस बात का विश्वास कर कि मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। तो इस मंत्र के भीतर, as I told you, I'll try to explain it in very simple way. I tried my best to explain it very simple way. 4 बातें मैंने कही कि ईश्वर देवों के देव महादेव हैं। दूसरी बात, he created this beautiful world for me, not for nature. और तीसरी बात मैंने कही कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि जितने दुरित हमारे जीवन में है वो सारे के सारे निकल जाएं। There should be no darkness, there should be no ignorance, there should be no injustice in our lives. और उसके स्थान पे क्या आ जाए? हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस। हे ईश्वर, आपकी कृपा से हमारे को इसी जन्म के भीतर प्राप्त हो जाए। तो ये पहला मंत्र है। जब हम यज्ञ करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों को गा रहे हैं और ईश्वर से मांग रहे हैं, तो मैंने पहले मंत्र के अर्थ के विषय में जो मेरा आज का समय था उसके अंतर्गत उस कहने का प्रयत्न किया। एंड मैं आप सबका अंत में समय हो गया है। My time is over. I would like to thank all of you that you listened me very carefully. Thank you once again. Namaste. आप सबका धन्यवाद. Thank you, Raju ji. Thanks a lot. This was really in depth, and I think थोड़ी देर में आंखें बंद करके सुन रहा था और उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था, और I think वो तरीका बहुत अच्छा है। मतलब you get to see a lot of things that otherwise open eyes you get distracted. So I think this was great in terms of, and I think the last में आपने बात बोली वो I think in general applies to many things. कि first you have to become deserving, and then you will get the benefit. Like they say, like आजकल we take everything for granted. You know, we hear a lot about this is my right, this is my right. So every right has a duty associated, a responsibility associated with this. So before you think yourself that you're worthy of that right, you need to be responsible and you need to give your 100%. So I think this was very, very nice. So with that, I'm gonna open it up for questions, and I know as I promised, the first right of refusal for a question is to Prerna. So Prerna, if you have any questions or you want to ask Raju something around what you heard, go ahead. You have the first right. Thank you, Acharya ji. मुझे लेक्चर बहुत अच्छा लगा और आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मेरे पास कोई सवाल अभी नहीं है, लेकिन मैं मंत्र रिसाइट करना चाहती हूँ। With me you want to recite? सबसे पहले मुझे तो इस बात का अच्छा लगा, you are trying to speak in Hindi. आप हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं. It is very nice for me listening you in Hindi. तो बहुत अच्छा लग रहा है. So you want to recite it with me? नहीं, मुझे आता है, मैं अपने आप कर सकती हूँ. आता है? Okay, you recite, I listen. ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you. Okay, with that, I think if anybody else has any questions, we are over time, so I apologize for that. But I think we have still 5 minutes. I can take one or two. We can take one or two questions. Go. Related with this mantra. Related to the topic, exactly. I think very well. Yeah. आचार्य जी नमस्ते, बहुत अच्छा रहा. नमस्ते. बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया. मेरे मन में अभी भी ये सवाल है, इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड गॉड क्रिएट अस? क्यों? हाँ जी, भगवान ने जी कैन आई आंसर योर क्वेश्चन नाउ? ये दो चीजें आपने बताई हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी वो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड ही क्रिएट अस? यस, देखिए ये जो ये क्रिएशन है परमेश्वर की, हम ये जन्म जन्मांतर का एक चक्र है, ठीक है, और वो इसलिए क्रिएट करता है कि हम संसार के भीतर आए, अच्छे काम करें और मुक्ति को प्राप्त करें. उसका हमारे को बनाने का मतलब यही, क्योंकि संसार में जो है यू कैन नॉट गेट कंप्लीट हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड. कंप्लीट हैप्पीनेस इज ओनली पॉसिबल विद हिम व्हेन वी कनेक्ट
with him, or when we sit in divine lab, or when we recite him, we get satisfaction. But if you find complete satisfaction or happiness in this world, you cannot get it. संसार के भीतर तो वो सुख मिलेगा नहीं, वो सुख भगवान के भीतर ही है। लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये संसार का रास्ता बनाया कि हमारे को उसने रचा। He created us, He gave us immense happiness। और साथ में उसने वेदों का रास्ता भी हमारे को बता दिया कि तुम संसार में आए हो तो तुम्हारे को जीना कैसे है और कैसे जीकर मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट ब्लिस है, इट इज ओनली हिज प्रॉपर्टी। और अगर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को उसके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, कई सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार सुनने के बाद उनका आंसर आता है। I give you an illustration. Swami Shraddhanand Maharaj, have you heard his name? Oh yes. Yes, thank you. Swami Shraddhanand Maharaj, when he was just Nanak Chand, when he was just Munshi Ram, his earlier name was Munshi Ram. He met Swamiji in Bareilly. First he saw Swamiji in Bareilly. Bareilly is in UP in India. तो वो स्वामी जी को जब उन्होंने सुना तो बिफोर लिस्टिंग स्वामी जी ही वाज एन एथिस्ट, वो नास्तिक थे, वो भगवान को मानते नहीं थे। लेकिन जब वो स्वामी जी को उन्होंने सुना और लगातार ही हर्ड हिम फॉर 3 days, एंड आफ्टर हर्डिंग हिम फॉर 3 days ही सेड मुंशी राम तो स्वामी जी कि स्वामी जी ऐसा है कि आपकी बातों को मेरा दिल तो मानता है लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता। यू नो, माय हार्ट accepting your truth, my brain denies। तब स्वामी जी ने एक बात कही थी, स्वामी जी से मीन स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज, स्वामी जी ने एक बात कही थी, जिस दिन भगवान की कृपा होगी दिल और दिमाग दोनों मान जाएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है, आप लगातार सुनते हैं, सुनने के बाद थोड़ा आपको लगता है नाउ यू आर ऑन राइट पाथ, लेकिन फिर भी आपका वो जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता। लेकिन एक समय आएगा जब वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट कीप ऑन लिसनिंग, रीडिंग एंड डूइंग गुड वर्क्स। धन्यवाद, वेरी नाइस, धन्यवाद, वेरी गुड जी, थैंक यू। I think we have for one more question, and then we'll end it. हाँ अभिषेक, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आचार्य जी। हाँ जी, पूछिए सर। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। तो ये क्वेश्चन है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? तो ये सुग्रीव जी। बर्नवाल जी। अच्छा जी, बोलिए। तो ये क्वेश्चन है गॉड के बारे में। तो गॉड का मेंशन है वेदाज में, लेकिन जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे जो बाकी जो और गॉड्स और गॉडेस हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे और जो देवी देवता हैं, उनका मेंशन जैसे वेदाज में नहीं है, राइट? तो अगर हम बच्चों को जब बताते हैं गॉड के बारे में, तो हाउ डू वी ऑल फिट टुगेदर कि Your voice is breaking. तो इतने देवी देवता हैं, स्कूल में भी जाते हैं तो उनसे उनके कॉलीग्स पूछते हैं कि हिंदू में तुम्हारे वाई गाइस हैव सो मेनी गॉड्स, और कौन क्या है, व्हाई देयर आर द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। तो ये सब थोड़ा हम कैसे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि उनके दिमाग में बात घुसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्लियर। एक चीज और है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको पढ़ा जाता है बिग बैंग थ्योरी कुछ करके है, राइट? कि पूरा दुनिया कैसे क्रिएट हुआ, और हमारा थ्योरी कुछ और है, तो वो एक दूसरा प्रॉब्लम करता है। तो इन दोनों चीज पे थोड़ा हमको बताइए डिटेल में। जी, देखिए, पहली बात तो यह है, आपको उनको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक देम क्लियर कि दैट गॉड इज ओनली वन, ही इज ओनली वन, हिज नेम्स आर मेनी एज आई हैव टोल्ड यू। ठीक है ना? जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्र वरुण अग्नि, ओम ब्रह्मा, ये सारे उसी का नाम है। सत्यात प्रकाश रिटन बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, उसके पहले समोल्लास पहले अध्याय में इन फर्स्ट चैप्टर स्वामी जी हैज एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी क्लियर वे व्हाट गॉड इज वन, हिज नेम्स आर मेनी बिकॉज हिज प्रॉपर्टीज आर infinitive, that's why his names are infinitive, but he is one. As tree is one, leaves are many. As ocean is one, waves are many.
ठीक है, पहले यू विल हैव टू मेक देम क्लियर। और दूसरी बात यह है कि आप कैसे उनकी वर्शिप करेंगे। आप किसी भी नाम से उस परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इस वेद मंत्र के भीतर बात कर रहा था, अब हम इस वेद मंत्र को बोलते हैं तो इस वेद मंत्र में ईश्वर का जब हम ध्यान कर रहे हैं तो देव और सविता नाम से कर रहे हैं। ये देव भी भगवान के लिए संबोधन है, भगवान का नाम है, और सविता भी भगवान का नाम है। ऐसे ही अब जब हम अगला मंत्र करेंगे नेक्स्ट मंथ when we will discuss सेकंड मंत्र, जब हम दूसरा मंत्र करेंगे तो उसमें भी हम क्या करेंगे, दूसरे मंत्र में भगवान को हिरण्यगर्भ के नाम से पुकारा गया। अभी आप बोलेंगे ना, हम उस दिन रिसाइट करेंगे, उस दिन मिलकर इस मंत्र को बोलेंगे। तो दूसरी बात यह है कि भगवान को अनेक नामों से पुकारा गया, लेकिन वो अनेक नहीं है। उसको हजारों नामों से पुकारा गया, लेकिन वो हजार नहीं है। इज ओनली वन। यू विल हैव टू मेक इट क्लियर। आप अगर ब्रह्मा के नाम से, यू आर कॉलिंग हिम ब्रह्मा, यू आर कॉलिंग हिम विष्णु, यू आर कॉलिंग हिम शिव, इट मीन्स यू आर कॉलिंग द वन गॉड which names are infinitive। ठीक है जी। और दूसरी बात, ये जो बिग बैंग थ्योरी है, आप अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इट इज गिवन और क्रिएटेड बाय क्रिश्चियनिटी, इट इज नॉट आवर थ्योरी। और हुआ क्या है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए बड़ी सारी बातें की, और उनमें सबसे पहली बात उन्होंने किया है जस्ट टू पुट सम इम्प्योरिटीज इन आवर वैदिक लिटरेचर्स। हमारे वैदिक लिटरेचर के भीतर उन्होंने दे ट्राई टू मिक्स सम इम्प्योरिटीज इन वैदिक लिटरेचर, और हमारे को जिसे कहते हैं ना, दे जस्ट वांटेड टू पुट अस इन ओनली डार्कनेस। तो वो हमारे को अंधकार में रखना चाहते थे। ये तो बात आपको, चूंकि यू आर अवे फ्रॉम इंडिया, यू आर अब्रॉड, यू आर इन अब्रॉड, और आप वहां पे रह रहे हैं, तो आपको ये बात तो बतलानी पड़ेगी कि इन वेदास जो हमारी थ्योरी है वही सही थ्योरी है, और बिग बैंग वाली थ्योरी जो है वो क्रिश्चियनिटी की थ्योरी। एंड वी डू नॉट बिलीव इन बिग बैंग थ्योरीज। वी बिलीव कि जैसे जो संसार बना, हाउ ही क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अगले प्रवचन के भीतर जो है ना, उसके भीतर मंत्र के भीतर ये है, हाउ डिड ही क्रिएट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, व्हाई ही क्रिएट्स दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, व्हाट इज द पावर और व्हाट इज द एम ऑफ क्रिएशन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सेकंड जब हम प्रवचन करेंगे उसके भीतर थोड़ा ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन टिल देन आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि ही इज वन। आप किसी भी नाम से पुकारिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उसी में एक फॉलोअप चीज ये भी है कि जैसे ईश्वर हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश या इंद्र अग्नि, ये सारे उनके रूप हो गए, बट फिर उनके नाम हो गए। हायरार्की में थोड़ा और आता है कि जैसे गॉडेसेज हैं, दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, जिनका की बहुत पूजा होता है। तो आर वी सेइंग कि वो भी उन ईश्वर के फॉर्म हैं, और हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ डू यू लिंक देम टुगेदर? they are divine personalities. We believe they are divine personalities as Bhagwan Ram, Bhagwan Krishna, Bhagwan Shiv. They were divine personalities. That's why they are called Bhagwan. Bhagwan means divine personalities. तो ये दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, ये लोग वाई देयर वाज हाँ, ये किसी टाइम में तो हुए थे। देवियां किसी टाइम में गॉडेस हैं, ये किसी टाइम में तो हुई थी। अब इनके जो ये 2 हाथ 4 हाथ बनाए थे, ये सिंबॉलिक है, दैट्स ऑल। अच्छा, तो वेदांत में इनका जिक्र है क्या कि नहीं है? नहीं, वेद के भीतर इनका इस तरह से जिक्र नहीं है जैसे ये इन्होंने 4 हाथ बता दिए। वहां पे वेद में ईश्वर को देवी नाम से भी पुकारा गया है, ईश्वर को सरस्वती के नाम से भी पुकारा गया है, लेकिन इस तरह नहीं है जैसे इन्होंने वो बना दिया। बट देवी, सरस्वती वर्ड्स आर फाउंड इन वेदास। तो ये सब कहाँ से आया, किसने बनाया? ये जस्ट आवर इमेजिनेशन। Yeah, sorry, I'll have to interrupt. Really, थोड़ा समय को रख रहे हैं। I think next time जब हम creation की बात करेंगे, तो I think we can kind of try to, Raju ji will try to address some of these points that you are raising. So ठीक है, I'll try to understand. Yeah. So I think we'll definitely do that at that point. And I just want to keep the time, because I know some people have to go to other engagements. So definitely we should try to give this some time. We're already up by 10 minutes. So now we will meet you after the year in 2022. 2022, correct. That's correct. Okay. Thank you after very much. The year we will meet you again. So yeah. So happy New Year to Raju ji. Same to you. Same to all of you. ठीक है। नए साल के पहले शनिवार को आपके दर्शन करेंगे, तब बात करेंगे, तब हम दूसरे मंत्र से शुरू करेंगे। टिल देन यू थिंक, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसे अपने माइंड में रखिए और उस दिन मुझसे कहिए, और आई ट्राई टू आंसर।
Great. And I mean, I would like to now we know what's the next topic. So if there are questions, if you can send it to me, I will make sure that Raju ji has it and he'll try to address them as in his lecture, hopefully. So, we will have the responses. दूसरे मंत्र पे, अभी हमने पहले मंत्र पे जैसे मैंने कहा ना कि briefly we are trying to explain it, I'm trying to explain it. तो अभी तो वो briefly था. अब सेकंड मंत्र, हर मंत्र के भीतर जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं, which are main points, I'll try to elaborate. Okay. Sure. So I'll take it over to Dr. Abhiji for thanking Raju ji, and then we'll end with Shantipat. You're on mute. Acharya, we really thoroughly enjoyed getting a recapitulation of the meaning and the mantra. ऐसी गलत इंग्लिश बोलती बहुत अच्छा लगा, बहुत समझती है. Excuse me, somebody else is speaking. Can you be on mute, please? Except Dr. Abhi, can everybody else be on mute, please? हाँ जी. तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में और बहुत इजीली, सरलता से बहुत अच्छी तरह समझाया. और इससे जब हम नेक्स्ट हवन करेंगे तो और भी अच्छे मन से भगवान की स्तुति करेंगे. तो जी. बहुत धन्यवाद. और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है. और मुझे अभी जी ने कह दिया था, अभिषेक जी ने कहा था कि हमारे बच्चे भी सुनेंगे, तो उसके हिसाब से आप सबका सब, तो मैंने सबका ख्याल रखा है and tried my best to explain. हाँ जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. शांति पाठ करते हैं. बिल्कुल. अभिषेक जी शांति पाठ करें. हाँ जी. ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति. बहुत धन्यवाद. बहुत सबको धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.